CAPFAC 2023 का ई एडमिट कार्ड अपलोड हो गया है। आपका जो भी कैंडिडेट्स हैं, अब आप डाउनलोड उसको कर लें। इफ एनी प्रॉब्लम होता है तो आप उसको देख लें, और जिस भी शहर में जहां आपने दिया है वो उसको चेक कर लें, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जिनको दूसरे शहर मूवमेंट करना होता है, तो अपने जो भी है अरेंजमेंट, ये सारी चीजों को देख लें। अब एक तरह से आपके पास बहुत कम टाइम है। अब आपके पास 20+ डेज हैं, तो इसमें से प्रॉपर तरीके से अपने को फोकस करो, अपने को ये लगाओ। अभी इसमें से इनफैक्ट कर सकते हो 22 डेज टोटल बचे हुए हैं। तो ये है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन प्रेस नोट। Union Public Service Commission will be conducting the Central Armed Police Forces examination on 6th of August 2023 all over the India. The commission has uploaded the e-admit card for the convenience of the admitted candidates on its website. ये आपके लिंक दिए हुए हैं। Okay. The candidates are advised to download their e-admit cards and take a print out thereof. E-admit card must be preserved till the declaration of the final results of the Central Armed Police Forces Assistant Commandant Examination 2023. No paper admit card will be issued for this examination. अब ये नॉर्मल क्या होता है ना, कि जैसे फॉर एग्जांपल में भी जो आपने प्रिंट आउट लिया है वो हो सकता फट गया, कहीं हो गया, लेकिन आप जो भी डाउनलोड करते हो तो उसको अपना अच्छे जगह रखो सही से, ताकि जो फाइनल रिजल्ट तक इनफैक्ट ये आपके पास रहना चाहिए। The candidates will have to produce the printout of their e-admit card at the allotted venue for appearing at this examination. The candidates are also required to carry along the photo ID card whose number is mentioned in the e-admit card for appearing at each session of the examination. तो जो आपने आईडी प्रूफ दिया है, चाहे वो आपने आधार दिया हो या वोटर आईडी दिया हो या फिर आपने अपने पैन कार्ड दिया हो, in case the photograph is not clear, blurred or not available on the e-admit card, candidate will have to carry 2 identical photographs, one photograph for each session, along with photo ID card and the print out of e-admit card at the venue of the examination for appearing. जिनके साथ कुछ इश्यूज है फोटो वगैरह में, तो वो आप 2 एक्स्ट्रा फोटो लेकर के जाओगे। इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी इन द एडमिट कार्ड, मान के चलो नेम, फादर्स नेम या कुछ में भी आपको प्रॉब्लम है, तो आपको ये कम्युनिकेट करना है। मे बी कम्युनिकेटेड टू द कमीशन इमीडिएटली बाय ईमेल। तो ईमेल आपका ये जो है soe23-upsc@gov.in for taking the decision in the matter. Okay, the candidates are advised to take a printout of the e-admit card well in advance. Obviously ये नॉर्मल है कि भाई आप बेटर है कि पहले उस चीज को ये कर लो और इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपर पढ़ो। It may be noted that entry into the examination venue shall be closed 10 minutes before the scheduled commencement of the examination. 9:50 पे आपका फर्स्ट सेशन में फिनिश हो जाएगा, यानी कि बंद हो जाएगा, और जो आपका 1:50 पे सेकेंड वाले में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें टाइम से पहले पहुंचना है। Candidates are also advised to bring black ballpoint pen, as the candidates shall be required to fill the OMR answer sheet and attendance list with black. देखो कुछ कैंडिडेट्स का ये होता है कि सर हम आंसर को सेकेंड पेपर में ब्लू से लिखें। आप ब्लू से लिख, लेकिन इट्स बेटर है कि जब स्पेसिफिक ये बोला गया है कि ब्लैक, अब जहां जहां आपको इसेंशियल है वो ब्लैक से ही, इट्स बेटर है हैबिट रखो ब्लैक से ही लिखने का। ठीक है, तो ब्लैक दूसरे पेन को ये करो ही नहीं, सीधा ब्लैक से आप लिखो। Use of normal or simple wrist watches by candidates is allowed inside the examination rooms or hall. However, use of watches fitted with any special accessory that might be used as communication device or a smart watches is strictly prohibited, and candidates are not allowed to take such watches in the examination rooms or hall. Generally आज के डेट में ये कोशिश किया जाता है कि आपके पास वो वॉल क्लॉक होता है टाइम देखने के लिए, लेकिन आप चाहो तो नॉर्मल वॉच ले जा सकते हो। मोबाइल फोन इवन इन स्विच ऑफ मोड, pager or any electronic equipment or programmable device or a storage media like pen drive, smartwatches, etc., or camera or Bluetooth devices or any other equipments or related accessories, either in working or switched off mode, capable of being used as a communication device and calculator, are banned inside the examination hall. Any infringement of these instruments shall entail disciplinary action against the concerned candidates, including debarment from future examination. Okay, valuable costly items and bags are also not allowed inside the examination venue. अब ये नॉर्मली आप बैग जैसे ले जाते हो मोबाइल और ये, तो वो आपको जो भी अप्रोप्रिएट जनरली व्यवस्था किया रहता है। कुछ एक एग्जाम सेंटर पे व्यवस्था नहीं होता है, तो आपको पे करके कहीं रखना होता है। तो हमें कोशिश करना चाहिए मिनिमम आप सामान लेकर के जाओ।
तो जो भी आप बेल में आप जैसे जिस शहर में आप हो वहीं सेंटर है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक तरह से पहले ही आपको देख लेना चाहिए, पता होना चाहिए, ताकि आप कंफर्टेबल, यदि दूसरे शहर में जाते हो तो थोड़ा एक दिन पहले जाओ, क्योंकि अननेसेसरी टाइम जब हमारा प्रॉब्लम क्रिएट होता कि कभी पता चला ट्रेन लेट है, बस लेट है, वो चीजें नहीं होनी चाहिए। आप वेल इन एडवांस टाइम पे पहुंचो। कुछ भी क्वेश्चन, क्यूरी, डाउट्स रिलेटेड होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या फिर हमें मैसेज कर सकते हो इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे। ऑलवेज रिमेंबर कि अब आपके पास जो है 22 डेज आज का, और एग्जाम जिस दिन है वो 22 डेज बचते हैं। इनको प्रॉपर तरीका से करो। अभी ये मत मानो जो वेल प्रिपेयर्ड हैं उनके लिए ये टाइम बहुत क्रुशियल है, और जो प्रिपेयर्ड या तो जो प्रिपरेशन जिनका अच्छा नहीं है तो उनको 22 डेज क्या, 22 मंथ्स भी दे देगा तो मुश्किल हो सकता है कुछ लोगों के लिए। लेकिन यदि आप अच्छे टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हो, हिम्मत नहीं हारना है। कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि सर अब तो बस 22 डेज बता हुआ, 20 डेज बचा हुआ, क्या हो पाएगा। हमेशा आखिरी मोमेंट तक फाइट करते रहो। आप सीरियस हो तो डेफिनेटली आप उसको करोगे। ओके, थैंक यू।